کہانیوں کے سلسلے افغانستان کی نئی کہانی یہی میرا وطن ہے۔ آئیے سنتے ہیں منشی پریم چند کی کہانی کسما گیلانی کی زبانی۔ آج پورے 60 برس کے بعد مجھے اپنے وطن، پیارے وطن کا دیدار پھر نصیب ہوا۔ جس وقت میں اپنے پیارے دیش سے رخصت ہوا اور قسمت مجھے مغرب کی طرف لے چلی، مجھ پر شباب کا عالم تھا، میری رگوں میں تازہ خون دوڑتا تھا اور سینہ امنگوں اور بڑے بڑے ارادوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے پیارے ہندوستان سے کسی ظالم کے زور جبر سے نہیں، انصاف کے زبردست ہاتھوں سے بھی نہیں جدا کیا تھا۔ نہیں، ظالم کا ظلم اور قانون کی سختیاں مجھ سے جو چاہے کرا سکتی ہیں، مگر میرا وطن مجھ سے نہیں چھڑا سکتی۔ یہ میرے بلند ارادے اور بڑے بڑے منصوبے تھے جنہوں نے مجھے دیش سے جلا وطن کیا۔ میں نے امریکہ میں خوب تجارت کی، خوب دولت کمائی اور خوب عیش کی۔ خوب یہ قسمت سے بیوی بھی ایسی پائی جو حسن میں اپنے آپ ہی بے نظیر تھی، جس کی خوبروئی کا شہرہ سارے امریکہ میں پھیلا ہوا تھا اور جس کے ذہن میں کسی ایسے خیال کی گنجائش ہی نہیں تھی جس کا مجھ سے تعلق نہ ہو۔ میں اس پر دل و جان سے فدا تھا اور وہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ میرے 5 بیٹے ہوئے، خوش شکل، قوی ہیکل اور سعادت مند، جنہوں نے تجارت کو بھی چمکایا اور جن کے بھولے ننھے بچے اس وقت میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے پیارے وطن کا آخری دیدار دیکھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ میں نے بے شمار دولت، وفادار بیوی، سپوت بیٹے اور پیارے پیارے جگر کے ٹکڑے، ایسی بے بہا نعمتیں ترک کی، اسی لیے کہ پیاری بھارت ماتا کا آخری دیدار کروں۔ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، 10 اور ہوں تو پورے 100 برس کا ہو جاؤں، اور اگر اب میرے دل میں کوئی آرزو باقی ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے وطن کی خاک کا پیوند بنوں۔ یہ آرزو کچھ آج ہی میرے دل میں موجزن نہیں ہوئی، یہ تو اس وقت بھی تھی جبکہ میری بیوی اپنی شیریں کلامیوں اور نازک ادائیوں سے میرا دل خوش کیا کرتی تھی، جبکہ میرے نوجوان بیٹے سویرے آ کر اپنے بوڑھے باپ کو ادب سے سلام کرتے تھے۔ اس وقت ہی میرے جگر میں ایک کانٹا سا کھٹکتا تھا، اور وہ کانٹا یہ تھا کہ میں یہاں جلا وطن ہوں، یہ دیس میرا نہیں ہے، میں اس دیس کا نہیں ہوں۔ دھن میرا تھا، بیوی میری تھی، لڑکے میرے تھے اور جائیدادیں میری تھی، مگر جانے کیوں مجھے رہ کر ساتھیوں کی یاد ستایا کرتی تھی، اور اکثر مسرتوں کی گہما گہمی اور شادمانیوں کے ہجوم میں بھی یہ خیال دل میں چٹکیاں لیا کرتا تھا کہ کاش میں اپنے دیس میں ہوتا۔ مگر جس وقت بمبئی میں جہاز سے اترا اور کالے کالے کوٹ پتلون پہنے اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے ملہ دیکھے، پھر انگریزی دکانیں، ٹرام وے اور موٹر کار گاڑیاں نظر آئیں، اور پھر ربڑ والے پہیوں اور چرت والے آدمیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی، پھر ریل کا اسٹیشن دیکھا اور ریل پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کو چلا، پیارے گاؤں کو جو ہری بھری پہاڑیوں کے بیچ میں واقع تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں خوب رویا، کیونکہ یہ میرا دیس نہیں تھا، یہ وہ دیس نہیں تھا جس کے دیدار کی آرزو ہمیشہ میرے دل میں موجیں مارا کرتی تھی۔ یہ کوئی اور دیس تھا، یہ امریکہ تھا، انگلستان تھا، مگر پیارا بھارت نہیں تھا۔ ریل گاڑی جنگلوں، پہاڑوں، ندیوں اور میدانوں کو طے کر کے میرے پیارے گاؤں کے قریب پہنچی، جو کسی زمانے میں پھول پتوں کی افراد اور ندی نالوں کی کثرت سے رشک فردوس بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو میرا دل بانسوں اچھل رہا تھا۔ اب اپنا پیارا گھر دیکھوں گا، اپنے بچپن کے پیارے ساتھیوں سے ملوں گا۔ مجھے اس وقت بالکل یاد نہ رہا کہ میں 80 برس کا بوڑھا آدمی ہوں۔ جوں گاؤں کے قریب آتا تھا، میرے قدم جلد اٹھتے تھے اور دل پر ایک ناقابل بیان مسرت کا اثر ہو رہا تھا۔ ہر چیز پر آنکھیں پھاڑ کر نگاہ ڈالتا۔ ہاں، یہ وہ نالا ہے جس میں ہم روز گھوڑے نلایا کرتے تھے اور خود غوطے لگاتے تھے، مگر اس کے دونوں طرف کانٹے دار درختوں مگر اب اس کے دونوں طرف کانٹے دار تاروں کی 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی، اور سامنے ایک بنگلہ تھا جس میں 2-3 انگریز بندوقیں لیے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے اور ادھر ادھر تاک رہے تھے۔ نالے میں نہانے یا نہلانے کی قطعی ممانعت تھی۔ گاؤں میں گیا اور نگاہیں بچپن کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگی، مگر افسوس وہ سب کے سب تو لقمہ اجل ہو گئے تھے، اور میرا گھر، میرا شکستہ جھوپڑا جس کی گود میں برسوں تک میں کھیلا تھا، جہاں بچپن اور بے فکریوں کے مزے لوٹے تھے، جس کا نقشہ ابھی تک آنکھوں میں پھر رہا ہے، اور وہ تو اب ایک تودہ خاکستر ہو گیا تھا۔ مقام غیر آباد نہ تھا،
सदा आदमी चलते फिरते नजर आ रहे थे जो अदालत और कलेक्ट्री और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरों से तफक्कुर और पुरजमुर्दगी नुमाया थी और वो सब अफकारी दुनिया से खस्ता हाल मालूम होते थे। मेरे साथियों के से कवि हैकल खुशरो सुर्ख सफेद नौजवान मुझे कहीं दिखाई न दिए। वो अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी वहां अब दरो दीवार शिकस्ता स्कूल था। उसमें चंद मरीज सूरत लड़के बैठे उंग रहे थे। ना ना ना, ये मेरा देश नहीं है। ये देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। ये तो कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं है। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसके खुशगवार साए में हमने बचपन की बहारें उड़ाई थी, जो हमारे छुटपन का गहवारा और आलमी जवानी का आरामगाह था। आह, उस प्यारे बरगद को देखते ही दिल पर एक रिक्कत तारी हो गई और ऐसी ऐसी हसरतनाक, दिलसोज और दर्दनाक यादें ताजा हो गई कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुंगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज्यादा लजीज और शीरीं मालूम होते थे। वो मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हम जोली जो कभी रूठते थे कभी मनाते थे, वो कहाँ गए? हाँ हाँ हाँ, मैं गुर्बत ज़दा मुसाफिर, क्या अब अकेला हूँ? क्या मेरा कोई साथी नहीं? इस बरगद के दरख्त के करीब अब थाना था और दरख्त के नीचे एक कुर्सी पर कोई लाल पगड़ी बांधे बैठा हुआ था। उसके आसपास कोई 10-20 और लाल पगड़ी वाले दस्तक खड़े थे और एक नीम बरहना कहत ज़दा शख्स जिस पर अभी अभी चाबुकों की बौछार हुई थी पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, ये मेरा प्यारा देश नहीं, ये तो कोई और देश है। ये यूरोप हो सकता है, अमेरिका है, मगर मेरा प्यारा वतन नहीं है ना, हरगिज नहीं। इधर से मायूस होकर मैं उस चौपाल की तरफ चला जहां शाम के वक्त पिताजी गांव के और बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी कहकहे उड़ाते थे। हम भी उस टाट के फर्श पर कलाबाजियां खाया करते थे। कभी कभी वहां पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल से मुल्हक एक गौशाला था जहां गांव भर की गायें रखी जाती थी और हम यहीं बछड़ों के साथ कुलेले किया करते थे। अफसोस, अब उस चौपाल का पता न था। वहां अब गांव के टीका लगाने का एक स्टेशन और एक डाकखाना था। हाँ हाँ, इन दिनों इसी चौपाल से लगा हुआ एक कोलू हुआ करता था जहां जाड़े के दिनों में गुड़ बनता था और गुड़ की खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो जाता था। हम और हमारे हमजोली घंटों गडेरियों के इंतजार में बैठे रहते थे और गडेरियां काटने वाले मजदूर की ताबुक दस्ती पर हैरत करते थे। यहाँ आसपास के घरों से औरतें और बच्चे अपने अपने घड़े लाते और उन्हें रस से भरकर ले जाते। अफसोस, वो कोलू भी अब जूं के तू गड़े हुए तो थे, मगर देखो, कोलू की जगह अब एक सन लपेटने वाली मशीन और उसके मुकाबिल एक सिगरेट की दुकान है। इन जिगर खराश नजारों से मैं दिल शिकस्ता होकर एक आदमी से जो सूरत से शरीफ नजर आता था उससे मैंने कहा, बाबा, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। उस आदमी ने मुझे सर से पैर तक गौर की निगाह से देखा और तब बोला, आगे जाओ भाई, आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया और यहाँ से फिर हुक्म मिला, आगे जाओ, आगे जाओ। 5वीं बार दस्ते सवाल फैलाने पर एक साहब ने एक मुट्ठी भर चने मेरे हाथ में रख दिए। चने मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़े और फिर आंखों से अश्क की धार बहने लगी। हाँ, ना, ये मेरा देश नहीं है, ये तो कोई और देश है। ये मेरा मेहमान नवाज, मुसाफिर नवाज प्यारा वतन नहीं है, हरगिज नहीं है। मैंने एक सिगरेट की डिबिया ली और एक सुनसान जगह पर बैठकर अगले वक्तों को याद करने लगा। यकायक मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रहा था। मैं उधर की तरफ लपका कि रात किसी तरह वहीं काटूं, मगर अफसोस, सदा है अफसोस। धर्मशाला की इमारत जूं की तूं थी, लेकिन उसमें गरीब मुसाफिरों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। शराब और शराबखोरी और बदकारी और कुमारबाजी ने उसे अपना मस्कन बना रखा था। ये कैफियत देखकर बेख्तियार दिल से एक ठंडी आह निकली। मैं जोर से चीख उठा, नहीं नहीं नहीं, 1000 बार नहीं, ये मेरा वतन, मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा भारत नहीं है। ये कोई और देश है, ये यूरोप है, अमेरिका है, मगर भारत हरगिज नहीं है।
अंधेरी रात थी, गीदड़ और कुत्ते अपने नगमे आलाप रहे थे। मैं नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं और अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका के खाक में मिला दूं? अब तक मेरा कोई वतन था। मैं गरीबुल वतन जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब मैं बेवतन, मेरा कोई वतन नहीं। इसी गौर खोज में बहुत देर तक खामोश सरबजानो बैठा रहा। रात आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाया और किसी के गाने की आवाज कान में आई। दिल ने गुदगुदाया, ये तो वतन का नगमा है, ये देश का राग है। मैं झट से उठ खड़ा हुआ। क्या देखता हूँ कि 15-20 औरतें बूढ़ी ज़ईफ सफेद धोतियां पहने हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जा रही हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। इसी पुरसरूर दिल खराश राग से मेरे दिल पर जो कैफियत तारी हो गई उसका बयान करना मुश्किल। मैंने अमेरिका की शोख से शोख और खुश मिजाज से खुश मिजाज हसीनों की आलाप सुनी थी और बार बार उनकी जबानों से मोहब्बत और प्यार के अल्फाज सुने थे जो दिलकश नगमों से भी ज्यादा शीरी थे। मैंने प्यारे बच्चों के अधूरे बोलों और तुतलाई हुई जबान का लुत्फ उठाया था। मैंने खुशनवा चिड़ियों का चहचहाना भी सुना था, मगर जो लुत्फ, जो मजा, जो आनंद मुझे इस नगमे में आया है वो मुझे जिंदगी में कभी हासिल ना हुआ। मैंने खुद भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं वश के आलम में था कि फिर मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई दी जो कि शिव शिव हर हर गंगे गंगे नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, ये तो देश, हमारे प्यारे देश की बातें हैं। फरते मुसर्रत से दिल बाग बाग हो गया। मैं उन आदमियों के साथ साथ हो लिया और 1 2 3 4 5 6 मील पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुंचे जिसका नाम मुकद्दस है, जिसकी लहरों में गोता लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू बरकत उस्मा समझता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील पर बहती थी और किसी जमाने में सुबह के वक्त घोड़े पे चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। इनके दर्शन की तमन्ना मेरे दिल में हमेशा थी। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठरते हुए पानी में गोता लगाते हुए देखा। कुछ लोग बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे और कुछ लोग हवन करने में मसरूफ थे। कुछ लोग माथे पर टीके लगा रहे थे और कुछ और लोग वैद मंत्र बड़ी खुशलहानी से पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा कि हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा वतन है, यही मेरा भारत है और इसी के दीदार की, इसी के खाक में पेवंद होने की हसरत मेरे दिल में थी। मैं इंतहाई सुरूर के आलम में था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई बेसमझ भोला भाला दिन भर हमदर्द लोगों में रहने के बाद शाम को अपनी प्यारी माँ की गोद में दौड़ कर चला है, उसकी छाती से चिमट जाए। हाँ, अब अपने देश में हूँ। ये है मेरा प्यारा वतन, ये लोग मेरे भाई हैं, गंगा मेरी माता है। मैंने ऐन गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और अब मुझे सिवाय राम नाम जपने की और कोई काम नहीं। मैं रोज शाम सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और मेरी ख्वाहिश और आरजू है कि इस जगह मेरा दम निकले और मेरी हड्डियां गंगा माता के पास लहरों की नजर हो। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं ये गंगा किनारा और ये प्यारा देश छोड़कर वहां नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि ये मेरा देश, मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा वतन और मेरी आशा है कि मैं अपने वतन में ही मरूं।